सबसे पहले तो let me say sorry for delay, and also in the last 22 years continuously coming to the Vasai, Bhayandar, Mira branches, but I think first time I got delayed because of I was not aware that work is going on this road. As far as once you introduce with a big 2-3 paper before at least this Bhayandar, Vasai, Virar, I think you people are trying to insulting me again and again because this is my home. Everybody knows me. And because of them only I became the past president. Bhayandar was a very instrumental for me. So that day Amit asked me, sir, आपका प्रोफाइल चाहिए. मैंने कहा भाईंदर में मेरा प्रोफाइल का जरूरत नहीं है. So that is a love and affection you all people have given. And I am so feeling proud when I see all these students. I say student with the proud because everybody has been accepted Xavier, chairman. But he is a student because since the regional council when I contested elections, this gentleman always standing with me. So still I consider him as a student. And Bhayandar branch was set up, the Vasai branch was set up, anything. These people are there taking care of each one of you, organize this program on Sunday. Congratulations to each one of you. You have the leader. You never have a leader in the Western India Regional Council. After the setting of these branches, right, you people are there and leading all of us. Friends, topic given to me, I think in the beginning he said that I was instrumental in having more and more MOU, MRA with the ICI and other body. What was the purpose behind all this exercise? We all are here to listen. Podarji is here, I think. Where is the Podarji? He said that I am sitting here. I don't think that he need to understand what is the importance of this MOU because he's almost retired now from the profession. But it's good that he's keep coming to the program and seminar. Friends, you know that in 2008 and 9, there was a fraud with the Satyam case. We all know. And that was a situation where the Institute of 57 years glory, that was totally on the stake. And people started abusing, talking against the chartered accountant. I, along with my president, respected Vijay Saab, we were sitting in the chamber and we discussed कि सर ये 57 साल हो गया, ये हम लोग ये दिन भर ऑडिट रिटर्न फाइल करना, वैट रिटर्न फाइल करना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है. बोला बॉस यही तो काम कर रहे हैं. मैंने कहा कर तो रहे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा हम लोगों ने कि जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कर रहा है, वैट का रिटर्न फाइल कर रहा है, कंपनी फॉर्मेशन काम कर रहा है, बैंक ऑडिट कर रहा है, सोसाइटी ऑडिट कर रहा है, बैंक से लोन दिला रहा है, क्या ये सारे के सारे काम इट इज नॉट डन बाय द अदर पीपल? और हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अनएथिकल काम करते हैं. और उस समय मेरे पास ओनली वी हैड 1,90,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. सर इतनी बड़ी मुश्किल से पास होना, हम सब पास हो गए इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जाके पूछो कि किस तरह से 31 स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग से भी क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं. आफ्टर गिविंग सो मच फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, रियली व्हेन वी गो टू द पब्लिक to serve our profession, we are doing to justice to the ICI. ये सब काम जो करने हैं मैं बिना इतनी पढ़ाई किए हुए, बिना ये CP आवर्स का कंप्लायंस किए हुए, बिना एथिकल स्टैंडर्ड, बिना पीयर रिव्यू, ये कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं. अगर यही काम करना है तो मुझे बोला उत्तम जी ये 365 दिन का समय अपने पास है, क्या क्या करेंगे और क्या क्या सोचेंगे. 3 महीने तो शुरू में अपने को फेलिसिटेशन के लिए चाहिए. हर ब्रांच वाले बुलाएंगे, स्टडी सर्कल वाले बुलाएंगे, और लास्ट के 3 महीने में ऑफिसर लोग जो है वो देखते हैं कि ये तो जाने वाला है तो सुनना बंद कर देते हैं. लेकिन मुझे शुरू से आप लोगों का आशीर्वाद था, कॉन्फिडेंस था. जब पहली बार 94 में जीत के आया और नवंबर 95 में हमने वसई की हॉस्टल को खड़ा कर दिया था. काफ़ी हमारी एसोसिएशन बॉडी थी
जो हमारी WIRC को कुछ नहीं समझती थी, लेकिन मेरे टेन्योर में आने के बाद और काफ़ी एक्टिविटी, और सबर्बन में कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं होते थे, हमने करके देखा था उसे। एक कॉन्फिडेंस था हमारे पास। जुलाई महीने में हम पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की जब मीटिंग चल रही थी तो हम गए थे वहाँ। 199 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव दिस इंस्टीट्यूशंस के लोग आते हैं, और इंस्टीट्यूट का 5 लाख रुपए खर्चा, क्योंकि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को आपकी फीस में से बिजनेस क्लास में जाने को मिलता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वही रूटीन जो यहाँ सुबह से आप देख रहे होंगे, WIRC में देखते होंगे और ICI में देखते होंगे कि सुबह लाइटिंग द लैंप होगा, वेलकम स्पीच होगी, फिर 2-3 प्रेजेंटेशन होंगे, टी ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा, इवनिंग में होगा, और फॉरेन में तो है थोड़ा पार्टी वार्टी भी होता है। रात को जब मैं होटल में गया तो मैं वेज जैन साहब से पूछा कि सर अपन 365 दिन मेरे थे वाइस प्रेसिडेंट के, और ये 5 दिन मेरे निकल गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये प्रोग्राम सेमिनार तो मैंने रीजनल काउंसिल में बहुत किया था। मैंने कहा अगर कल को AGM होती नहीं है, अगर AGM हुआ और किसी मेंबर ने पूछ लिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट you people have traveled to US so many times, what you did, you spend our money, what answer we have, can we say like that कि पहले प्रेसिडेंट ने किया हम भी ऐसा ही करेंगे? बस सर मेरे को समझ में नहीं आता कि why we have come and this is my last visit, I will not come. बोला ठीक है जैसा आपको सोचना है। दूसरे दिन जब वैलिडेटरी हो रहा था, जैसे अभी हो रहा है, जैसे अभी आधे घंटे का टाइम मिला था आपको, तो जेवियर साहब कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, ब्रांच के बारे में बता रहे होंगे। सेम सिचुएशन में कोई फैकल्टी थी जो नहीं थी, एंड देयर वाज अ टाइम, सो द IFAC पीपल सेड कि लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, एंड एनी मेंबर हु वांट्स टू स्पीक कम ऑन डायस एंड स्पीक। अब रात से मेरे दिमाग में एक जुनून चल रहा था, मैंने कहा चलो आज बोलने का मौका मिला है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। I went there and I said, thank you very much, all these things. I am so happy to meet you all. I have so many visiting card exchanging and everything. I had a very good coffee, which I never have. But let me understand, when there is a International Federation of Accountants, when we all have come here together, where we study the accounting standard, which is a globally, the auditing standard, which is a globally, ethical standard is globally, except the local law. Everything is the same, therefore we call and we have come on the one platform. Then why there is a need that my student in India more particularly is very difficult to pass. Spend 3-4 years, 5 years completing the CA, and because of some reason if they go back to, they are going outside India, again they have to go with the process of appearing this, not a CPT, IPC, there is a different level. Then I don't think that we are one, so it should not have, we should not have this type of meeting. If the federation means we are all are same, right? There may be some issues which we have different, southern region we have different, Kappa we have a Kappa region, that is AC Pacific, we have a different, but international also we have a different, that is a law and ethical standards. Why don't we come to a conclusion where any member body want to enter into the MOU and recognize their professional course to each other? And let me say with the proud, in the first time these Gora people, they considered this proposal without even item on the agenda. And they approved that any member body, they want to enter into the MRA across the globe, they are free to do all these things and we will recognize them for any other purpose. अब मुझे भी मालूम नहीं था कि क्या होगा इसका। हम बातचीत करके आ गए और अप्रूवल हो गया। जब फ्लाइट में वापस 16 घंटे की जर्नी की, मैं बोला वेज जैन साहब ये बताओ कि इसका क्या होगा। अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा। बोला अभी आपने बोल दिया, अपन आगे चल के बात करेंगे। सो अभी करंट जो एक्टिव सेक्रेटरी है, ही वॉज अ सेक्रेटरी टू द इंटरनेशनल अफेयर कमेटी। मैंने उनको जाके बुलाया, मैंने कहा एक आपको बात बताते। बोले सर बताइए क्या है। मैंने कहा वहाँ पे मीटिंग में गए थे और हमने ऐसा बोला और अप्रूव हो गया है। बोला सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरा क्या बढ़िया चीज़ समझ में नहीं आई। बोला सर ये हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट
आउटसाइड इंडिया है, उनको जॉब है, सब कुछ है, लेकिन एक रिकॉग्निशन नहीं है। तो उनको जो है, कई लोग हैं जो पढ़ाकू है, उनको मेंबरशिप वहाँ पर लेने का आदत है, तो 3-4 साल लग जाते हैं। मेरा वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये आगे गाड़ी बढ़ेगा कैसे? बिकॉज वी आर द रेगुलेटरी बॉडी, हमारे को कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से मिलना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू कन्विंस देम, क्योंकि गवर्नमेंट की देश की पॉलिसी अलग होगी। देन वील हैव टू गो टू द लॉ मिनिस्ट्री, एंड देन अगेन वी हैव टू गो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। और इंडिया में ऐसा काम करने के लिए 365 दिन में कि 3 मिनिस्ट्री से प्रपोजल पास कराना हो, आई थिंक ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीबडी। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैड मिस्टर वासुदेवन साहब, ए सीनियर मेंबर, और उनके मिस्टर लॉ मिनिस्टर थे भारद्वाज जी, तो वो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट वासुदेवा साहब थे। आई डिड ऑल द वर्क इन माई प्रेसिडेंटशिप यूजिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि उनका क्लाइंट कौन है उसको पकड़ लो, अपना काम हो जाएगा। दैट इज असेट विथ ऑल ऑफ अस। भारद्वाज जी के पास हम गए शाम को, और उनको बोला कि सर हमने ऐसा ऐसा बात सोचा है कि आपकी लॉ मिनिस्ट्री इस चीज़ को कंसिडर करेगी। बोला बेटा वासुदेवा साहब बोल देंगे तो मैं सब कर लूँगा। बोला बेटा वासुदेवा साहब बोलेंगे मैं सब कर लूँगा। बोले आज तक मेरा यही काम करते हुआ है। एंड देन यू वॉज अ मेंबर इन द काउंसिल, सीनियर मोस्ट आवर काउंसिल कलीग। लीगल मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से जब हमें अप्रूवल मिला कि अब ये काम को कर सकते हैं, वाई वी रिक्वायर्ड this all ministry approval? Because there is a right for the auditing attestation function to give somebody else, because we were set up under the Act of Parliament for our Indian Chartered Accountant. That is our right. Suppose if I enter into the MRA to recognize other body, if they become a member of my institute, whether they will be permitted to sign the balance sheet in India or not. फिर हमने दिमाग लगाया कि इंडिया में तो बहुत कम लोग आएंगे, बाकी हमारे इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, तो अल्टीमेटली इस एमआरए का फायदा तो हमको ज़्यादा होने वाला है। वी थॉट कि सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा होना चाहिए। सो वी जनरली अवर पीपल कम्स ऑन द डायस, दे से वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हु इज द फर्स्ट वन? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। और हमने सबने शुक्ला ग्रेवाल की किताब पढ़ी होगी सीए करते समय। हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन होता था उस पर लिखा रहता था एग्जाम ऑफ इंग्लैंड वेल्स वगैरह सब। तो जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे दिमाग में ये आता था। तो मैं बोला यार एक इंस्टीट्यूट है बड़ा, मिस्टर सहगल, हमारे बच्चों को जब पढ़ाई करने के लिए चैप्टर देते हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने वो क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, मतलब चैप्टर समझ में आ गया, तो मतलब हमसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन होगा। तो वाई डोंट वी स्टार्ट विद द इंग्लैंड एंड वेल्स इंस्टीट्यूट। एंड हमने इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड वेल्स के साथ दैट प्रेसिडेंट वॉज मिस्टर मार्टिन वॉज देयर, और हमने उसको फ़ोन किया कि बॉस वी इंडियन पीपल वांट्स टू हैव द एमआरए विथ यू। और उन्होंने स्टेट वाला नहीं कुछ भी नहीं करने का, स्टेट अवे। उनको लगा कि बहुत बड़ी हमारी प्रॉपर्टी जायदाद चले जाएगी, तो जैसे हमको नहीं जाने का। हमने प्लान किया इंग्लैंड वेल्स, हमारा जो चैप्टर है, there used to be a very little chapter outside India, but now with the proud I can say more than 35. In my tenure we activated 29 chapter outside India. तो हमने इंग्लैंड वेल्स के जो लंदन में यूके चैप्टर के हमारे मेंबर थे उनसे बात करके मीटिंग रखने के लिए वी ट्रेवल टू द इंग्लैंड एंड वेल्स, वी वेंट टू द इंग्लैंड वेल्स इंस्टीट्यूट, एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, वी इन्वाइटेड देम टू इंडिया। अब फॉरेन में आगरा और जयपुर के नाम से लोग पागल हैं। सो आई इन्वाइटेड Martin and his wife along with the board of studies team of England Wales. We entertained for 6 to 7 days to make them understand what is the India, what the Indian people. And 6 दिन की उनकी PR एक्सरसाइज में we could convince them कि भाई साहब आपका आदमी तो कोई हमारे यहाँ पे आने वाला नहीं है, हमारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर है। अब वो लोग अगर मेंबर बन जाते हैं, इफ़ यू साइन है हमारे, तो आई थिंक दैट टाइम 1 लाख समथिंग का एनुअल फीस है। हमारे यहाँ तो 4,250 रुपये का फीस देते हो तकलीफ हमको मेंबर को, वहाँ 1 लाख से ऊपर का फीस था। तो उसको कैलकुलेशन किया कि तुमको इतना पॉइंट मिल जाएगा, व्हाट इज द रॉन्ग टू यू। उसको जब फिगर समझाया तो उसको पैसे में समझ में आ गया। मैंने कहा एटलीस्ट यू कैन लीव समथिंग
for the memory that in the history of Mr. Martin something happened, and you will increase the member 2,700 also. तो उसके दिमाग में बात आ गई, थोड़ा एक्सरसाइज भी किया. I will not take much time on that, and we could convince him. And let me tell you with the proud that we signed the MRA on our Indian stamp paper, not the foreign stamp paper. And that time the Lord Mayor of London was also the chartered accountant of that institute, so he came to the Taj Hotel and we signed the MOU. So that was the beginning of the MRA in the Institute of Chartered Account of India. Let me tell you, friend, after that MOU was signed, what we did, we sent the email across the country to all the global institute. और हमने क्या मार्केटिंग किया कि इंग्लैंड वेल्स वाला जो है वो अगर इंडिया में आएंगे तो उनको 4 पेपर देना है, और हम लोग जाएंगे तो हमको एक ही पेपर देना है. What we proved in the country कि इंडिया का एजुकेशन बेस्ट है. That MOU we signed. और वो साइन करके हमने सबको भेज दिया. इमीडिएटली देयर वाज ए यू एंड क्राई, और व्हाट नॉनसेंस यू पीपल हैव डन इट, कि आपने पूरे इंडिया में बोल दिया हमारा वैल्यू कम हो गया. हमने बोला हमारा डिपार्टमेंट पागल, इनको नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, विल नॉट डू. मेल तो चलेगा, अभी क्या मैटर है. वी सेड सॉरी टू हिम एंड थिंग कंटिन्यू. देन वी सेलेक्टेड द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑस्ट्रेलिया को हमने सेलेक्ट किया पहले, और देयर ऑल्सो वी साइन द MOU, बिकॉज देयर ऑल्सो वी हैव ऑलमोस्ट that time 3,000 chartered accountant across the Australia. So we thought कि उनको भी काम हो जाएगा. So we went there, Sydney, वहाँ पे मीटिंग हुआ हमारे चैप्टर का. We went there, given them the presentations, and England वेल्स का नाम आने के बाद everybody started. और उसका MOU पे हमारे कुछ 2 पेपर पे बातचीत चला. अब मैंने बोला कि यहाँ CPA ऑस्ट्रेलिया भी है. So what I did the lot of marketing in our India and start sending a cutting to them. तो CPA ऑस्ट्रेलिया को लगा कि इंडिया में हमारा प्रेजेंस क्यों नहीं होना चाहिए. So CPA Institute came to one of the program and given me the honorary degree of the CPA Australia. कि सर ये ज़िंदगी में पहली बार है, we want to recognize you because you have done lot of things in the globally, so we want to make you our honorary member of our institute. अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, पास करना एग्जाम होता है, पास होता है. बट दे गिवन मी. अब उन्होंने मुझे डिग्री दिया तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कॉल मी कि मिस्टर अग्रवाल वी ऑल्सो वांट टू ऑनर यू विद ऑनररी डिग्री. सो आई एम ए फॉर्चुनेट. आई हैव ए 2 डिग्री विदाउट इवन अपीयरिंग ए सिंगल पेपर, एंड आई एम ओनली 1 पर्सन हु हैज द डिग्री अक्रॉस द ग्लोब. And I have not to pay the annual fees every year. And here I have worked so much for the institute for last 20 years, still we have to pay, there is no exemption to the past president. So that was the time when we thought it to divert the mind on the issue which was going against our profession, shifting totally through marketing, media, and really we created some great worth with us to have the MRA. Then we did with the Bahrain Institute, then we set up the Institute of Chartered Account of Nepal, then we set up the accounting auditing system of UAE, Djibouti, Bahrain Banking Institute we signed. So every time or every month I can say, you people are witness to that, we signed the MRA. July 2009, 1st July Agra International Conference I had. There I invited all the CEO of the country, of all global institute, including the chairman of Accounting Standard Board, Auditing Standard Board, CPA Australia, everybody they came. So in platform we were signing so many MOU, so Malaysian president was also there, he came on the platform. I don't want any paper from Indian Chartered Accountant, I also signed the MRA. Means now you can become the Chartered Accountant of Malaysia also without giving any paper and pay the fees to their institute. So in short, I would like to say that today, our Institute of Chartered Accountant of India, we all are global chartered accountant, Just you go through with the 7 to 8 paper of all the institute, wherever we want to go, we can go. There are certain countries where there is a restriction of practice. Right? It is a fortunate or unfortunate, whatever you say, that after the team, whoever came to our institute, they have not taken interest at all in moving to this direction,
to have the more MRA, getting recognitions for attestation function outside India. When chapter you decided in Bhinder, I was very much thinking कि भाईंदर के हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे के चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी ये अपॉर्चुनिटी फॉरेन की करके क्या करेंगे? Friends, how many people you are aware that outside India what the chartered accountants are doing? No, छोटा, अभी तो मेरा नंबर है इसलिए पूछ रहा है इसको. नहीं, छोटे में बताइए ताकि सबको समझ, बाकी तो मैं समझा दूंगा. छोटे में बता दिए कि बाकी तो मैं आगे एक्सटेंड कर दूं. हाँ. Thank you, Uttam Prakash ji, for giving me 1 minute. Basically, the non-resident Indians or the Indian chartered accountants earn 3 to 4 times more money than India in Middle East, and 16 times more than Indian money in US and UK. Multiple I am talking about. पैसे की बात तो अपने पास बहुत है, काम की बात. काम में I am very close to firm in Oman and Dubai, and there is a monopoly. There is monopoly in Middle East, Africa and US. There are no Indian presence in practice. यहाँ 30 साल लगेगा किसी को प्रैक्टिस बनाने में. सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं. क्या काम? टैक्स का, ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेस करते हैं, बैंक बोरोइंग का पावर सर्टिफाई करते हैं. Okay, I have spent 12 years in Oman, 2 years in Dubai, 2 years in Uganda and 10 years in US. Friends, our member, those who are outside India, let me tell you, they are doing a great job. All top company, take it the Emirates or any oil company in Kuwait and all the CEO or CFO are the Indian chartered accountant. And their packages, हमारे यहाँ कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते. 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, मंडे टू फ्राइडे. हमारे यहाँ रात को 12 बजे भी जिन सिन टिन विन का काम नहीं करते वो. दिन भर मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में आता रहता है कि ये डेट एक्सटेंड होगी, ये जीएसटी काउंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बराबर. तो वहाँ के जो लोग हैं, दे आर ऑल डूइंग द वैल्यू एडिशंस, दे आर डूइंग द इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब. इन इंडिया ऑल्सो, if anybody talks for going globally for our profession, sometimes I feel what people we are talking. India is a great opportunity. Unless and until you do not come out from the cell of the empanelment of the bank audit or society audit, the GST and all these things, I think you will not be able to achieve what you can. What the Institute of Chartered Accountants of India has given to all of us, we cannot achieve, and we will continue to do the work what the ITP people are doing. How many people will believe that I do not know how to operate the computer? Nobody will believe this. I retired in 2004, I have not signed any balance sheet. And today I do not know any single provision of the GST. Not me, my daughter, she qualified 1.5 years back. She also does not know anything. It's not that I feeling proud, but I know that I used to do it that earlier. But when I came to know that this is not a job of a chartered accountant, this is not a role of a chartered accountant. Because in the population of 138 crore, hardly we are 3 lakh people. Hardly 3 lakh people. And when we have a very less number, we can understand ourselves that we are a different people as compared to others. प्रॉब्लम क्या है कि हमको मालूम नहीं कि हमको भगवान ने सीए क्यों बना दिया. मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम 1-2 साल पहले की बात है, 11,700 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुए थे. एंड आई हैड ए अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस अक्रॉस द कंट्री हाउ टू फेस द इंटरव्यू, because I initiated in 2007 when I was the chairman of the committee. So whenever they require, they call me, I keep going and discussing with the young chartered accountant. Friend, there were 245 companies for the campus placement across the country, ready to offer a very good package to my chartered accountant, very good package to chartered accountant. But after having a discussion, when I asked the student, beta, can you tell me what will be the criteria to select the company and accepting the offer? Can you tell me what will be the answer?
किसी के पास कोई आंसर नहीं था, मेरे पास उनका आंसर था कि सर जो ज़्यादा सैलरी देगा हम उधर चले जाएंगे. दिस इज आवर स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग द सेकंड रैंक होल्डर इन द बैंगलोर. एंड व्हेन ही सेड सर आई वांट टू गो टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, जब मैंने कुछ बोला तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो ही सेड कि सर बैंकिंग इंडस्ट्री जाना चाहता हूँ. मैंने व्हाट फॉर? नहीं सर मैंने कंकरेंट ऑडिट किया है, इंटरनल ऑडिट किया है, स्टेचुटरी ऑडिट किया है. मैंने यू वांट टू गो फॉर बैंकिंग, यू आर रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंट, यू डिड सो मच, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर? देयर वाज नो आंसर. स्टिल सो मैनी, नॉट इवन 11,700 जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अक्रॉस द कंट्री, आई आस्क्ड द क्वेश्चन, एक ही आंसर मिला, सब जो ज़्यादा पैसा देगा उसको हम ज्वाइन कर लेंगे. और ये छोटा सा क्वेश्चन है, वो किसी को भी नहीं आया. हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बाद में बात करें, इंडिया में इतनी है, अल्टीमेटली काम वहाँ पे वही करना है. मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया कि वी हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इंडियन चार्टर्ड अकाउंट है द ग्रेट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड इंडिया, बिकॉज वहाँ पे 5-6 घंटे लोग काम करते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 12-15 घंटा काम करना सिखा दिया है. सो वी पीपल वर्क वेरी हार्ड विद द ग्रेट इंटेलिजेंसिया, प्रैक्टिकल अप्रोच. फॉरेन में एक लाइन दिया हुआ उनका, एसओपी बना हुआ हर चीज़ का, है ना. और एसओपी में कहा है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है तो लिफ्ट से जाना है, तो लिफ्ट ऐसा नहीं देखेंगे कि लिफ्ट आएगी टाइम लगे हमें ऊपर चढ़े, वो लिफ्ट से ही जाएंगे. बट माई इंडियन पर्सन एंड मोर पर्टिकुलरली व्हेन यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज थॉट is totally different, and they work so much that people are paying. So as far as opportunity is concerned outside India, forget about whether there is MRA or not, there is huge potential, huge opportunity which you cannot compete in terms of money. But the same thing in the same style, यहाँ क्या होता है कि 9 बजे का ऑफिस हम 10 बजे जाते हैं, वहाँ 8 बजे का 8:01 पे गया तो बाहर निकाल देंगे. तो वहाँ पर जो एक दिन का काम का जो रिजल्ट है हमारे यहाँ 10 दिन का भी नहीं आता. और वहाँ की बात भूल जाओ, इंडिया में भी हम स्मॉल 4 और बिग 4 में अगर कंपैरिजन करें तो 7 लाख का पैकेज जो बच्चे को देते हैं वो पूरा 10 लाख का काम करवा लेते हैं, और हम जिसको 2.5 लाख का देते हैं उसको 1.25 लाख भी नहीं करवा सकते. ये प्रैक्टिकली है ना. वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है. सो वेर एवर देर इज ए अकाउंटेबिलिटी, वेर एवर देर इज ए सिंसियरिटी, देर इज ए अपॉर्चुनिटी. मैं तो एक बैक साइड में लिख दिया कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी है, बट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू वर्क फॉर दैट. आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ यस बैंक. व्हेन आई मीट माय, वी हैव ऑलमोस्ट 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या सैलरी होगा उनका सबका? मेरे कंप्लाइंस ऑफिसर है, उसको सैलरी अभी 4 करोड़ रुपए मिला है, 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस मिला है, ईसॉप अलग मिला है, जबकि 2 चीज मैंने पूछा उसको आता नहीं था. आई एम ऑल्सो इन अदर म्यूचुअल फंड, एंड wherever I see that chartered accountant are on they are positioned at very good place, they are getting very good packages. What I want to convey here, now time already almost 70 years we people have spent by doing these all routine things. Now we ourselves has to decide and make the changes in the young generation to make them the industry specific chartered accountant, because now there is a compliance role is a very important for all of us. It's not auditing and taxation, right? अभी नफरा तो शुरू हुआ है, इसका रिजल्ट 6 महीने में आप देखते जाइए. The people who are sitting at the helm of the affair of the NAFRA, they don't know what is the difficulty for chartered accountant to complete the assignment of auditing. But वो लाइन से जाएंगे, क्लॉज नंबर so and so not done, डिसिप्लिनरी केसेस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, 1 लाख का जुर्माना, 6 महीना जेल, ये सब शुरू हो जाएगा. हाउ मेनी पीपल वी आर अवेयर? मालूम ही नहीं है. मालूम होगा तो सब बैलेंस शीट साइन करना बंद कर देंगे. I stopped in 2004. Why? Because I entered in the council first time in 2004. और पहले महीने में डिसिप्लिनरी केस चल रहा था. एक सोलापुर का केस था, आमने सामने ऑफिस है, उन्होंने एनओसी नहीं लिया और रजिस्टर रेडी से वो नहीं भेजा.
सामने है तो छापा मार के ले आया। वो कुछ डिस्प्यूट हो गया, दे फाइल द केस कि ये नॉट सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड आईडी। अब रजिस्टर्ड आईडी के लिए पहले पोस्ट ऑफिस जाता, वो पैसा दे के वापस आता, फिर जाता, छापा मारा तो बोले नहीं ये तो किसी ने छापा मरवा लिया होगा, तो पोस्टमैन से भी छापा मरवा लेता ना। जब ऐसे केस में उस मेंबर का 3 महीने के लिए नाम छुट्टी हो गया, मैंने ऑफिस में आके बोला आई विल नॉट साइन एनी पेपर टुडे ऑनवर्ड्स, कि आज मैं दूसरे का डिसिप्लिनरी केस कर रहा हूँ, कल मेरा भी आएगा, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग है। हम लोग हमारे आर्टिकल पे भरोसा करते हैं, हमारी जो नीचे चार्टर्ड अकाउंट्स पे भरोसा करते हैं। किसी ने कुछ भी छोड़ा था वो साइन हो गया काम से। तो देयरफॉर आई लेफ्ट दिस इन 2004. So when we are comparing this MRA, we are discussing on MRA, in short that they are more in the value addition services, not in this or this routine work of auditing, filing of return and all these things. Wherever you go, you give the value addition, I think you will have a great name, great position and great money. Any question on this, then I can proceed further. Some specific question in this, because we have so many things and time is very limited. Because what is the term and condition already written on this, where is the exam center, how to pay the fees and all these things, right? That already in the, on the website of our ICAI. But you do not have, as on today, the auditing right outside India. Only you get the recognition, so while getting a job, you have a more priority as compared to even a local chartered accountant. That is an advantage to you all. क्या चीज? नहीं, there is no need. नहीं, कुछ नहीं, वो सारा प्रोसेस लिखा हुआ सीधा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, देयर इज नो रोल ऑफ द काउंसिलेट, उसका जरूरत ही नहीं है. दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. एनीथिंग पर Middle East, so far we have not signed any MOU, right? And there outside India, there are the monopoly of that country. They do not allow any outsider people to sign, but you can make a local person as a partner, and then you can start the practice. In Dubai and Middle East, people are doing, a lot of people they are doing. I will discuss your experience, I know very well. I'm here only to people. No, that Vasai branch will decide on this issue. I am not here. I am here only to guide my members, young people who are awaiting for to discuss with me. Any members, they want to know specific thing. Because I know that I do not want to waste much time on this issue. I have a lot of other things to discuss. So therefore, because the organizer has decided this particular topic, right? And yes, they have given me, knowingly my nature, that I speak more when I come to the binder. So that is a thing. If on the subject, so I do not want to do injustice to the managing committee. They invited the members, they took the registration in the name of this, and I started speaking something which is very, very much paining for me after listening so many things happening for our profession. So for particular this topic, any member, young people, they want to know anything? Is not there. I was on the issue of. Suppose हम chartered accountant को जैसे दुबई है suppose, हमें वहीं पे अगर suppose कुछ business करना है, तो सर just on behalf of audience, including myself, कि हम कैसे approach कर सकते हैं? आपको पता है कि दुबई में हमारा institute है, whatever है, तो I will be very grateful कि आप हमें. It's a member conference, not for the business. It is for the practicing chartered account. Otherwise, you'll have to discuss with him, counsel it, वगैरह जो है वो they will guide you. Business, I cannot tell you how to do the business in Dubai. Right? हाँ. So business, I will not be able to tell you, but in practice, you have to make the local member partner. Even he is the worse than even our IPCC student. But you have to make him the partner. Because I was the person who started permitting articleship outside India. First time in Dubai in 2009 only. So that was a problem for me. If
in Middle East or anywhere, the student started taking articleship training in the local partner, then what will be quality of my chartered accountant? Then we say that let it be for their country, for having the firm with local partner, but permitting articleship under only Indian chartered accountant, that if he is qualified as per our process, then only they will be allowed. So that also we have taken care of that. So they have done their job, we have done our job, that at least now we have a center at Nepal, we have a center at Dubai. I think 3-4 places now we have, Bahrain also we have the centers for examinations. And more students, they are doing the articleship training there. Canada is there already. Only 2 paper. Only 2 paper. No, that recently they have changed something. In last 2 months back, they have again revisited all the conditions. So that time too, there is no need. I think they have the center here also. Not a single MOU we have done anything where my student or my chartered accountant has to go there and give the exam. So that we have seen it. So that all condition we have seen. Otherwise, आने जाने में पैसा इतना चले जाएगा जो 1 साल में मैं नहीं कमाऊंगा. और अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं. So we have taken so much care. Yes, please. I am coming on that issue only. हम क्या है, इंडियन मेंटेलिटी है, हमको दूसरे लोग ही अच्छे लगते हैं. हमने कभी हमारे बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है. यू टेल मी योर सेल्फ, एनी डे यू थॉट इट कि मैंने ये किया लोग मुझे फॉलो करेंगे? आपको नहीं, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं बोल नहीं सकता, उनको बोल रहा हूँ. No, not you. Not you. We all Indian people, बराबर. We have the mindset कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और we will follow others only. क्योंकि कुछ भी चीज़ में हम लोग करने की शुरुआत करते हैं ना, तो we start with a negative. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. Is there anybody who has the कि ये तो हो जाएगा? सर ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में. हाँ, तो एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, राइट. बट अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट ऐसा है कि कुछ भी काम होगा बोले हम नहीं कर सकते. दूसरों की बात नहीं, हमारी बात कर रहा हूँ. जब हम काउंसिल में थे, हमने देखा कि मैंने 2004 में एग्जामिनेशन को सुधारा, 2005 में एग्जीक्यूटिव कमेटी को संभाला, 2006 में डिसिप्लिन संभाला. फिर भी मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं इस इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ. एंड आई लेट मी टेल यू ऑन द पेपर, एवरीबडी नोज, बिफोर 2020 आई नेवर थॉट इट दैट आई विल रेज माई हैंड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, whereas I already retired for 10 years back. But after working 1 year, 2 year, 3 year, when second term, when people got me elected again, somebody came to me कि उत्तम जी आपका वोट मुझे चाहिए. मैंने आई से फॉर व्हाट? बोला आई एम कॉन्टेस्टिंग फॉर वाइस प्रेसिडेंटशिप. मैंने कहा आई हैव नॉट सीन एनी कंट्रीब्यूशन लास्ट 3 years, सो व्हाट इज द रीजन आई शुड गिव यू द वोट. मैंने 3 आपसे ज़्यादा तो काम मैंने किया है, तो मेरे को खड़ा होना क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने बोला आप खड़े नहीं होना, हमको तकलीफ हो जाएगा. चलो ठीक है. दूसरा आया, तीसरा, हमने सबसे सही बात किया कि आपने काम नहीं किया, हम आपको वोट क्यों देंगे, तो मैं क्यों नहीं खड़ा हो जाऊं. तो मुझे 2-4 जगह से सेंस आया कि अपने में कुछ ताकत है. और हम जो 8 लोग नए चुन के गए थे, मैंने उनका मीटिंग बुलाया. मैंने ये सब लोग, अभी 5 फरवरी का इलेक्शन है, सब लोग आ रहे हैं, किसको वोट देना चाहिए? तो सब अपने अपने हिसाब से. मैं बोला मुझे कोई काम करने वाला जिसने इंस्टीट्यूट में मेंबर स्टूडेंट का काम किया, मुझे उसका नाम बताओ, आई विल गिव यू. बोला नहीं, ये तो मैंने किया है ना, मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ? बोला आप खड़े होंगे, अभी तक कोई खड़ा नहीं होगा. हम होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? तो हमने 8 लोगों में माहौल बनाया पहले. और सबसे पहले हमारे स्टूडियस वेद जैन साहब थे हमारे 8 में से. तो मैं वेद जैन साहब को बोला ये नया एक प्रयोग है, पहले आप जैसे स्टूडियस आदमी होने चाहिए, हमको तो बदमाश लोग गिनते हैं.
तो पहले आप अगर जीत गए तो हम भी अगली बार लाइन में आ जाएंगे। और जब हमने 8 लोगों ने डिसाइड किया चुनाव लड़ने का और हमारे वेद जी इलेक्शन को जीत गए। जब जीत गए तो दूसरा साल वापस जब आया तो जयदीप शाह खड़े होने वाले थे। तो मैंने कहा यार शुरुआत तो मैंने की बात की, तो जयदीप भाई का नंबर कहाँ से आएगा? तो हमारे दूसरे लोग बोले नहीं, ये तो उत्तम जी का ही नंबर आना चाहिए। एंड मैं इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया और 5वें साल में मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया और आज 10 साल हो गए रिटायर हो गया। क्यों? शुरू में ऐसा डर था कि मैं बड़ी फर्म का आदमी होना चाहिए, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आना चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को हेड करना है, इंटरनेशनल बॉडी में जाना है, सरकार को मिलना है, मीडिया को मिलना है। सो मन में एक डर था कि आई एम नॉट सुटेबल टू दिस पोस्ट टिल 2020, बट लोगों ने देखकर कि मैं काम कर रहा हूँ, दे प्रमोटेड मी कि आप बन सकते हैं, एंड आई कॉन्टेस्टेड, आई बिकेम द प्रेसिडेंट। सो आई कम बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इफ़ वी डिसाइड टू डू दैट वी कैन नॉट डू इट। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा नेगेटिव हो गया और मैंने काफ़ी चीज़ें ये करके उसके करने के बाद इवन जब वसई का हॉस्टल बनाया तो हमारे 3-4 काउंसिल मेंबर थे, उन्होंने नहीं बनने देने के लिए बोला उसके अंदर हेल्थ क्लब बना दो, स्विमिंग पूल बना दो, मतलब कैसा भी करके वो चीज़ ना बने। तो इट इज़ ए थैंक्स टू द केसी जैन साहब, वो चेयरमैन थे। मैंने बोला भाई साहब इसको अलग करो, अपन एक अलग एजुकेशनल ट्रस्ट बनाएंगे और उसके अंदर हॉस्टल को बनाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का पैसा तो लगाना नहीं है। सो वी डिड दैट वे एंड वी बिल्ड अप दिस इंस्टीट्यूट। सो मेनी थिंग्स व्हाट वी डिड, वी कुड सेट अप सो मेनी थिंग दैट वी डिड इट। सो व्हाट आई कमिंग बैक टू हियर कि आप जब तक ये जो रूटीन ऑडिट, टैक्सेशन और इससे बाहर नहीं आएंगे, हमारा माइंड इतना तेज है जिसको हम जानते नहीं अभी तक। हमने हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझा है। आप जस्ट 3 महीना खाली बैठ के देखिए, आप अपने पास टाइम वैसे ही बहुत है, लेकिन अपन एक्सटेंशन पे सेम काम पे काम किए जाते हैं। काम वैसे 4 महीने से ज़्यादा का नहीं है अपने पास। अप्रैल से लेकर जब ईयर क्लोज हो गया और उसमें भी पहले हर क्वार्टर में आजकल तो सब तैयार हैं, तो जुलाई तक अपना काम सब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांगते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं है। लोगों को लगेगा सीए के पास काम नहीं है, चलो करते रहे, बिजी तो है हम लोग, जबरदस्ती का। आई नो दैट वो जब व्हेन आई वाज ए प्रेसिडेंट देयर वाज ए लॉट ऑफ, सर आपको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेगा अगर आप डेट एक्सटेंड नहीं करवाते हो तो। सो व्हेन वी वेंट टू चिदम्बरम साहब कि सर डेट एक्सटेंड करो, तो बोला मिस्टर अग्रवाल मुझे समझ में नहीं आता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग दुनिया की प्लानिंग करते हो, खुद की प्लानिंग का क्या है? बोले आपको ये नहीं है कि जुलाई में अगर रिटर्न भर दिया तो उसकी जुलाई में फीस आ जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे म्यूचुअल फंड में 8% मिलेगा, अभी दिसंबर में करोगे फीस आएगी मार्च में, तुमको थोड़ी पेनल्टी लगती है। यू पीपल रन मई जून से आना शुरू कर दे, सर डेट एक्सटेंड कर दो, डेट एक्सटेंड कर दो वगैरह। आपके लिए तो कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए, तो लॉयर है ना, तो दे आर इंटरेस्टेड इन कॉम्प्लिकेशंस। बोले आपके लिए तो उनको जितना इंटरेस्ट पेनल्टी लगे आपके लिए बेटर है, आप समझ रहे हैं। सो वी हैव द वर्क ऑफ 4 to 5 months, जस्ट सिट 2-3 months आइडल। आई एम टेलिंग यू, मेरे को जिंदगी में कभी बैंकिंग नहीं आता था, and today I am heading the chairman of audit committee of Yes Bank, which is the 4th largest bank, right? And what experience the institute has given to me, you will see within 7 to 10 days in the newspaper, right? That we have been taught for the independency, we have been given so much knowledge that will come out within a couple of days before each one of you, that what Institute of Chartered Accountants India President can do in the society. वहाँ गया, 2-3 महीने मैंने पढ़ाई किया, समझा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं, कैसे एवरग्रीनिंग होती है। वी डिड सो मेनी बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में क्या था, 10 दिन जाने का था, बढ़िया होटल में खाना खाना था, फीस आ जाने का था, मजा करने का था। बराबर आज तक उस पर डिसिप्लिनरी केस किसी पे हुआ नहीं, क्योंकि कंकरेंट ऑडिट के लोन डूब गए तो कंकरेंट ऑडिट पे पहले काम हो जाता है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में कुछ नहीं होता है। बट वी से वी राइट एक्सपीरियंस ऑफ 20 years इन द बैंक ऑडिट, व्हाट इज दिस। वो पूरा हज़ारों पेज आए, कभी पढ़े नहीं, छप्पा मारा दे दिया, और 2 महीने में अपना चेक का वेट कर लिया, चेक आएगा नहीं आएगा। दिस वे वी डिड द वर्क। बट लेट मी टेल यू कि हम लोग, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो गई है कि वंस यू गो थ्रू द पेपर you will be the far better as compared to the IIM and all people.
सेम थिंग हैपन व्हेन आई वाज ए पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड. मेरे पास कोई म्यूचुअल फंड का एजेंट आता तो मैं उसको भगा देता था. और मुझे पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड का मिला, अभी कोरिया की कंपनी है, मेरा एसेट में देर आई बिकेम ए चेयरमैन. अब मुझे सारे प्रोडक्ट, सारे कंप्लाइंसेस, आई कैन टेल यू ओपनली हियर एनीथिंग, एज इफ दैट आई बीन ट्रेन फॉर लास्ट 10-20 ईयर्स. मुझे जीएसटी और इनसे बेटर भी वो चीज़ आने लग गई. अभी IFRS आया, इंड एस आया, बराबर. हम जितने भी नए पुराने लोग हैं, कहीं कोचिंग में गए हम लोग? ये GST आया, हम कहीं गए थे इंस्टीट्यूट के सेमिनार के अलावा? Nobody was there to teach us. But that is an inbuilt capacity of all of us, the knowledge what we have. But we have not tried to use in a different manner. अभी भी बच्चे जब इंटरव्यू के लिए आते थे, ऐसा फोल्डर लेके आते हैं, और तो उनके चेहरे पे अभी भी डर है जैसे कोई CA इंस्टीट्यूट में वापस फेल कर देंगे. आज भी रैंक होल्डर बच्चों का ये पोजीशन है. मुझे तो आई एम वेरी मच टच विद द स्टूडेंट, तो मेरे पास अभी बच्चे आते रहते हैं, वो ऐसा फोल्डर लेके आते हैं, बेटा क्या करोगे, क्या करें, उनके मुंह से जवाब नहीं निकलता है. रैंक होल्डर बच्चे हैं, नॉलेज में कितने तेज है पूछो मत. लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे पास, वो नहीं है. और ये MOU हो चाहे नहीं हो, डिग्री हो चाहे नहीं हो, हमारे पास तो बहुत बड़ा स्तर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, लेकिन नहीं है तो भी, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, कोई सेमिनार और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, कोई CP आवर्स का ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू वंडर इन द लाइफ. आई थिंक time is not permitting. Any special questions about NAFRA? NAFRA, how many people we have gone through with this? जो NAFRA आने वाला है उसके बारे में कितने लोगों को मालूम है? Pardon? Deloitte has been already debarred. And more people are in line. It should not happen that our name comes, then only we come to know that implementation प्रारंभ हो गया है. Today is a very, very difficult task for each one of you. Time is very bad for all of us because nobody is understanding what is the role of a chartered accountant. उनका कहना मतलब है कि the true and fair view, that concept has gone now. Is it true and correct? How many people we are here we can give the true and correct? True and correct का बात किया नहीं कि NOC आ जाएगा हाथ में, हैं कि दूसरा CA तैयार मिल जाएगा. So when we know that it is a very difficult task for all of us to give the true and correct, why don't we start thinking to go some different area? बैंकिंग के अंदर कम से कम 15 से 20 तरह का रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का है. सिस्टम के ऊपर हमारे को इतनी सारे लोगों की जरूरत रहती है कि वी डोंट गेट ए गुड पीपल. अभी म्यूचुअल फंड के अंदर एक प्रेजेंटेशन चल रहा था, रिकंसिलेशन 2-2, 4-4 महीने तक चलते हैं. मैंने कहा डू यू नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिकंसिलेशन? मैं सबसे बड़ा फ्रॉड करने का जगह है ना वो रिकंसिलेशन है. हमारे लोग क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी का अगर आ जाता है तो 31 मार्च को बैलेंस शीट में नहीं आया इसलिए रिकंसिलेशन में खड़ा कर देते हैं. So the insurance sector in 2008, hardly 30 chartered accountants were part of the insurance sector. In last 2 months back, Mr. Kuntia, when I happened to meet him, he said कि उत्तम जी 3000 chartered accountant अभी insurance sector में है. And down the line, next 10 years, 30,000 chartered accountant will be required in the insurance sector. Today, hardly 17 to 18% people are aware about the insurance. और वो भी कैसे? जनरल इंश्योरेंस, आप मर जाएंगे तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस खत्म. जनरल इंश्योरेंस, गाड़ी रोड पे नहीं आएगा, बैंक से लोन नहीं मिलेगा, मेडिकल का झूठा बिल नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस खत्म. उसमें भी 17 से 18% लोगों को मालूम है. इन दैट देयर इज ए 45 लाख करोड़ रुपीज इज देयर इन्वेस्टेड इन द वेरियस इंश्योरेंस इंडस्ट्री. Whose role to regulate? Just we all of us. How many people we are aware? There is a system audit. Insurance के अंदर कितनी audits है मालूम है आपको? How many audits are there? There
जस्ट लाइक अ बैंक, जितनी बैंक में लगती है उतनी लगती है. देयर इज ए इन्वेस्टमेंट ऑडिट. व्हेन पीपल टॉक अबाउट कि बैंक में इतने सारे घोटाले और सीए लोग इन्वॉल्व है, यू पीपल शुड टेल देम कि इंश्योरेंस सेक्टर में 1 रुपए का भी एनपीए नहीं है. डू यू नो दैट? वही चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं, वही प्रमोटर है. देन व्हाट इज ए डिफरेंस कि बैंक में इतने एनपीए हैं और यहाँ पे नहीं है? बिकॉज दे हैव मेड रेस्पॉन्सिबल टू द CIO, रिस्क ऑफिसर, CFO, so many people have to sign the certificate. And regulatory monitoring is being done by them, by the ID. Banking, mutual fund and insurance. These are the 3 areas where we should work, and our young people who comes, they should work on that. And again the blockchain and artificial intelligence. There may be a statement yesterday or today by the governor ki currency is a right of the country, not by the company and all these things, but ultimately this blockchain and artificial intelligence, we people start thinking to change our mindset from this area of auditing. This is our butter. ठीक है, तो थोड़ा 3-4 महीने चला उसको, बाकी we have 8 months. In 8 months you start thinking, you do some research, you read something, you will get lot of things. And since when there is a topic of global level, sitting here also without even passing any exam, you can do a lot work of outside India. I come back to it. I told in beginning that my daughter is not doing anything, right? I put her on a job to write to a various company outside India when she qualified. Today, with proud I say, there is a one group of USA, Navika Group. They have a 80 hotels, 5-star, mall, parking lots, golf. Sitting here along with a 30 people team, she is not earning less than 1.5 crore rupees per year. 3 महीने में 1 महीना वहाँ जाती है, ट्रेनिंग लेती है, वहाँ से यहाँ आती है और अपने लोगों से काम करा के डायरेक्टली, इज नॉट ए आउटसोर्स और बैक ऑफिस, शी इज डायरेक्टली टॉकिंग टू ईच एंड एवरी ऑफिसर्स ऑफ ऑल द 80 होटल्स. फॉर लास्ट 2 years CA फाइनल में आई थी, जब से उसने जाना शुरू कर दिया ट्रेनिंग के लिए. एंड ऑन पेपर आई कैन शो, मैं लेके नहीं आया, ने बता था कि दैट मैनेजमेंट हैड सेड दैट ग्रेट वैल्यू एडिशन हैज बीन डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट. वहाँ पे क्या है कि पे के अंदर अगर 1 रुपये का भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है तो भी ह्यूज डॉलर पेनल्टी हर चीज़ के ऊपर. गवर्नमेंट का कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि दे वांट ए गुड पीपल, और जो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे बेटर कहीं नहीं मिल सकता है. सो यू पीपल हैव टू सिट, टॉक टू ऑल द ग्लोबल कंपनी, राइट? CPA फर्म्स, अभी कंप्यूटर है, CPA फर्म को भी बैक ऑफिस का काम बहुत देने की ज़रूरत है. दे नीड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उनका दिसंबर एंडिंग है. आपको कई बार लगता होगा ना बिग 4 से हमको बाहर भेज रहे हैं. ये बिग 4 में कौन है यहाँ पर है? वो बोलते हैं सर हमको श्रीलंका गए, वो गए, वहाँ गए, ऐसा है. वो कुछ नहीं है, उनका सबका ब्रांड एक है. दे आउटसोर्स द पीपल, जो यहाँ पर है खाली है उनको वहाँ भेज देते हैं, और उनका बिलिंग जो है पर ओवर बेसिस पे होता है. तो हमको क्या लगता है डेलोइट टू डेलोइट है, पर इंटरनली जो है वी हैव बीन गिवन प्लेस फॉर देयर वर्क ऑफ दैट कंट्री फर्म. सो एवरीबडी नीड, you people have to sit on the computer, not on the Facebook or and all these things, but you find out the CPA firm, right? Big chain of hotels, chain of hospitals, this retail shop, they need to have, they need to give lot of work outside India. अहमदाबाद की हर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास फॉरेन का काम है. राजकोट की हर फर्म के पास बाहर का काम है. बड़ौदा की हर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास बाहर की फर्म का काम है. केरला, साउथ में सारा का सारा काम उधर के लोगों का उधर है. हमारे इधर हम सब शेयर बाजार में बिजी हैं, तो हमारे पास शेयर बाजार वालों का ही काम है, और उससे रिलेटेड जो बिजनेस वाले उनका काम है. सो एट द एंड लेट मी से दैट देयर इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. वी हैव टू चेंज अवर माइंड सेट, वी हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस. बराबर, हमारी कुंडली किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, जो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने पहले देख चुका है ना. काफ़ी लोगों ने ट्राई किया हुआ है, जिनका भविष्य अच्छा लिखा है ना, वो यहाँ पे CA बना है,
राइट, बट उसको निकालना है, उसको यूज़ करना है, बराबर, और देश की सेवा करनी है. विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच.